ہم آئلہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو تو تم جانو تمہارا کام جانو. لیکن جس دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ ماں باپ کا کبھی غدار نہیں ہو سکتا. جی عاشق رسول کی پہچان ہے کہ وہ ماں باپ کا وفادار ہوگا. حضرت بلال کو دیکھو، عاشق رسول ماں کے کیسے وفادار. حضرت اویس قرنی کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار. حضور غوث الاعظم دستگیر کو دیکھو، ماں کے کیسے وفادار. ماں نے ایک جملہ کہہ دیا گھر سے نکلتے ہو، پوری زندگی اس پہ عمل کیا. اور ہمارے نبی ماں سے کتنا پیار کرتے تھے. ہمارے نبی کو نبی یہ امی کہتے ہیں. ہمارے نبی کا لقب کیا ہے؟ نبی یہ امی. اب لوگ اس پہ دھوکہ کھا گئے، کہنے لگے وہ تو ان پڑھ ہے. ارے پاگل، جو ان پڑھ ہوگا وہ کائنات کو کیسے پڑھائے گا؟ سبحان اللہ. کبھی کسی ان پڑھ کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے؟ ان پڑھ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور حضور فرماتے بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا. سبحان اللہ. سب آ کر معلم بنے ہیں اور حضور بنا کر بھیجے گئے. سبحان اللہ. بے شک. میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ اللہ. جس کو اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو اس کو استاد کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ. نبی کو ان پڑھ کہنے والا جاہل ہے. نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی تو پڑھانے آئے ہیں. نبی تو، یہ میرا عنوان نہیں لیکن بات آئی تو عرض کروں. ایک ان پڑھ ہے، اس کو اسٹیج پہ بلا کر بولو پڑھو تو لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب پاگل ہوئے ہو. ان پڑھ کو پڑھو بولنا یہ جہالت ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے جو تقریر کرنا نہیں جانتا، اس کو اٹھا کے بولو تقریر کرو، بولے مجھے آتی نہیں. ظلم نہ کرو مجھ پہ، میں تقریر کرنا نہیں جانتا. ایک آدمی نعت پڑھنا نہیں جانتا، اس کو نعت پڑھو، بولے کیا پاگل ہوئے ہو؟ زبردستی مجھ سے کیا کام لے رہے ہو؟ سنار کا کام لوہار نہیں کرتے، لوہار کا کام سنار نہیں کرتے. ایسے ہی اب نبی پر جو پہلی آیت آئی، نبی پر پہلی آیت کون سی آئی؟ اقرا، مطلب پڑھو. جو ان پڑھ ہو اس کو اللہ پڑھنے کے لیے کیسے کہے گا؟ بتائیے. اقرا بتا رہی ہے کہ نبی ان پڑھ نہیں تھے. جبریل کے آنے سے پہلے انہیں پڑھا لکھا کر کے بھیجا گیا تھا. سبحان اللہ. وہ تو معلم بن کر کے آئے تھے نا، انہیں معلم. تو بہرحال بحث دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور کا لقب ہے امی. اب اس کے بہت سے معنی ہیں. امی کا ایک معنی بے پڑھے کائنات کو پڑھانے والا. امی کا ایک معنی اللہ کا ڈائریکٹ شاگرد. الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. امی کا ایک معنی مکے کا نام ہے ام القرآ. مکے کا کیا نام ہے؟ بکہ اس کا نام، مکہ اس کا نام، بلد امین اس کا نام. تو مکے کا ایک نام کیا ہے؟ ام القرآ. تو جیسے اندور کا رہنے والا اندوری، لکھنؤ کا رہنے والا لکھنوی، تو جو ام القرآ میں رہتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ امی. یعنی ام القرآ کا رہنے والا. تو نبی امی ہے نا، حضور مکے میں پیدا، ام القرآ میں پیدا ہوئے. لیکن امی کا ایک معنی اور سن لیں جو مفسرین نے بیان کیا، اور اس پہ بات پوری ہوتی ہے. توجہ کریں. ام ماں کو کہتے، ماں کو کہتے، اور امی ماں والا. امی مطلب ماں والا. اب ماں والے تو سبھی ہیں. آپ کا دھیان ہے تو میں بات کروں گا، ورنہ بات پوری ہو گئی ہے نا. تب میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں توجہ. یہ اس عنوان، یہ اس محفل کی اختتامی گفتگو ہے، لیکن دھیان سے سننا. ہمارے نبی کی
का आपने बहुत कुछ सुना सीरत का, ये पहलू भी सुने हुजूर माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। हुजूर को उम्मी इस बुनियाद पर भी कहा गया माँ वाला। माँ वाला मतलब अरे सभी माँ वाले, बिन माँ का कौन है? बिन बाप का तो कोई हुआ है, बिन माँ का आदम और हव्वा के सिवा कोई नहीं हुआ है। हाँ, माँ से ही हुए, तो माँ वाले तो सब है। तो माँ वाले का मतलब क्या? असल में जिसको जिससे ज्यादा रग़बत और मोहब्बत करते देखते हैं तो कहते हैं, जिसको इल्म से ज्यादा मोहब्बत तो क्या कहते हैं? जो रात दिन इल्म में घुसा रहता बोलते हैं ये इल्म वाला है? जो तकवे में बहुत ज्यादा डूबा रहता तो क्या कहते हैं? तकवे वाला है? जो इंसान जिस चीज से रग़बत रखता है तो उसको क्या कहते हैं? ये वो वाला है, ये वो वाला है। तो जब नबी को सबसे ज्यादा माँ से प्यार करते देखा तो लोगों ने कहा ये नबी ये उम्मी है, ये नबी तो माँ वाला है। सुभान अल्लाह। और नबी ने माँ से कितना प्यार किया, अब उसको सुन लीजिए। टाइम मेरा पूरा हुआ लेकिन इजाजत है मैं बता दूं इस पे नबी ने पाक ने माँ से कितना प्यार किया। नबी ने माँ से कितना प्यार किया। एक मर्तबा सहाबे किराम के दरमियान हुजूर तशरीफ फरमा थे, अल्लाह के रसूल जलवगर थे। ऐसे में एक बूढ़ी औरत बड़ी भी लकड़ी टेकते टेकते आई। उसकी कमर हल्की सी झुक चुकी थी, उसके बदन पे कंबल था। अल्लाह के रसूल ने उसको देखा, सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए। आका सहाबा को छोड़ के उठ के खड़े हो गए और उस बड़ी बी के पास, बुढ़िया के पास जाकर के बैठे और उसके लिए अपनी कंबल बिछाई और उसको कंबल बिछा के अपनी कंबल पे बिठा। सहाबा ने ये मंजर देखा, हाय हाय क्या खुशनसीब खातून है जिसके लिए रसूल रहमत अपनी चादर बिछा रहे हैं और अपनी चादर पे उसको बिठा रहे और गौर से उसकी बातें सुन रहे हैं। और जब तक वो बातें करती रही हुजूर उसकी बातें सुनते रहे। वो खड़ी हो गई तो अल्लाह के सच्चे रसूल भी खड़े हो गए। जब वो जाने लगी तो साहबा ने पूछा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ए करीम बंदा परवर आका, ये कौन खुशनसीब खातून है जिस पर इतना करम हो रहा है? आका फरमाते हैं ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। सुभान अल्लाह। ये मेरी ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। तब लोगों को एहसास हुआ कि दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम है। अगर हकीकी माँ सैयदा आमिना सामने आती तो रसूलुल्लाह उनसे कितना प्यार करते, उनसे कितनी मोहब्बत करते। जब दूध पिलाने वाली माँ का एहतराम ये है, अल्लाह अकबर, जो माँ आमिना थी हलीमा सादिया ने तो दूध पिलाया, लेकिन हकीकी माँ हज़रत सैयदना आमिना थी। सैयदा आमिना पाक से कितना प्यार था। हुजूर बार बार कहते थे आज मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ रही है, और हुजूर माँ का जिक्र करके रो पड़ते, कहते आज मुझे मेरी अम्मी सैयदा आमिना की याद आ रही है, और हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। इसलिए कि रसूलुल्लाह की उम्र मुबारक अभी सिर्फ 6 साल की थी कि रसूल पाक की अम्मी जान दुनिया से तशरीफ ले गई, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से सैयदा आमिना को उनकी कब्र में दफन किया। हुजूर ने अपने हाथों से दफन किया। आप जानते हैं अपनी माँ से कितना प्यार था। बार बार जिक्र करते थे। हज पे गए तो हज को जाने से पहले माँ के मज़ार पे तशरीफ ले गए, माँ की कब्र पे तशरीफ ले गए। जरा गौर कीजिए, हज को जाने से पहले माँ के मज़ार पे जा रहे हैं, हिजरत के वक्त माँ के मज़ार पे जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। और मौके पर बार बार हुजूर माँ के मज़ार पे तशरीफ ले गए। सीरत की मुख्तलिफ कुतुब के अंदर मौजूद है, और अक्सर माँ का जिक्र करते, मेरी माँ तो ऐसी थी, मेरी माँ तो ऐसी थी। हत्ता के सैयदा फातिमा को देख के कहते, फातिमा तू तो मेरी माँ जैसी दिखती है, तू उम्मे अबीहा है, तू मेरी माँ की तरह है, यानी तुझे देखकर मेरी माँ मुझे याद आती है। आइए मैं आपको बताऊं नबी की अम्मी जान कैसी थी। नबी की अम्मी जान के साथ नबी का ताल्लुक क्या था। आज अपने माँ बाप से दूर होने वालों, अल्लाह अकबर, दोस्तों के साथ घंटों बैठते हो, इसके साथ घंटों बैठते हो, उसके साथ घंटों बैठते हो, माँ बाप तरस जाते हैं। 24 घंटे में एक बार भी अपने माँ बाप की खैरियत पूछते हो, माँ बाप तरसते हैं, मेरा बेटा आएगा मेरे पास बैठेगा मेरी खैरियत पूछेगा। नहीं नहीं, आजकल के बच्चों को माँ बाप के पास बैठने का टाइम नहीं है, कुत्तों के साथ
खेलने का तो टाइम है, बिल्लियां पालने का तो टाइम है, चिड़ियों को वक्त देने का टाइम है, अल्लाह अकबर, जानवरों के साथ दिल बहलाने का टाइम है। वो माँ बाप जो तुम्हारी जन्नत है, खिदमत करो तो जन्नत है, तौहीन करो तो वो तुम्हारी जहन्नम है, उनके पास बैठने का वक्त नहीं, उनके पास बैठो, उन्हें टाइम दो, उनकी खुशी हासिल करो। आओ ना जरा देखते हैं रसूल रहमत अम्मी से कितना प्यार करते हैं। बल्कि एक बात बताऊं, अब जब भी अम्मी को अम्मी कहना, इस नीयत से कहना कि मैं अपनी माँ को अम्मी इसलिए कहता हूँ कि मेरे नबी ने अपनी माँ को अम्मी कहा, यानी कि मेरे नबी ने अपनी माँ को माँ कहा, इसलिए हम उनको अम्मी कहते हैं। अल्लाह अकबर, कितना प्यार है ना नबी ने, अल्लाह अकबर, किस कदर माँ से प्यार किया। अभी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की उम्र मुबारक 5 या 6 साल की थी। हलीमा सादिया के घर से हुजूर अलैहि सलाम अपनी अम्मी जान के पास आए। माँ में और बेटे में बड़ा प्यार था, बहुत खूबसूरत थी हुजूर की अम्मी जान, बहुत छोटी उम्र में दुनिया से चली गई। एक दिन हजरते सैयदा आमिना ने मेरे आका से कहा, बेटे तुमने अपने अब्बा की ज़ियारत नहीं की, तुमने तुम्हारे अब्बू को नहीं देखा, मेरा दिल ये चाहता है कि एक मर्तबा मैं तुम्हारे अब्बू की मज़ार की तुम्हें ज़ियारत करा दूं, तो चलो मैं तुम्हें ले जाती हूँ। और अपने ससुर सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को हज़रत अब्दुल्ला के मज़ार पे ले जाऊँ। मेरे बेटे ने बाप की शक्ल तो नहीं देखी, कम से कम बाप का मज़ार तो देख ले। अल्लाह अकबर। और रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मज़ार जो है वो मदीने मुनव्वरा में है, मदीने शरीफ में, क्योंकि उनके अब्बू जान बहुत बड़े ताजिर थे। रसूल पाक के अब्बू जान सैयदना अब्दुल्ला बहुत बड़े ताजिर थे, तो वो तिजारत के लिए गए और रास्ते में बीमार पड़ गए। तो उनके अब्बू का ननियाल पड़ता था मदीना शरीफ, उसका पुराना नाम यसरब है, लेकिन हम उसको यसरब नहीं कहते, अदब की वजह से मदीना मुनव्वरा कहते हैं, मदीना शरीफ कहते हैं। खालिस मदीना मदीना भी नहीं कहते, जब भी मदीने मुनव्वरा का नाम लो तो मदीना शरीफ कहो, मदीनतुल मुनव्वरा कहो, तैयबा पाक कहो, उसको खालिस मदीना मदीना न कहा करो बल्कि मदीना शरीफ कहा करो। फतावा रज़विया में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें तलकीन की, मदीना शरीफ कहो, बगदाद शरीफ कहो, अजमेर शरीफ कहो। जिस ज़मीन पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, लोग अगरचे मजाक उड़ाने दो, दीवानों का मजाक न उड़ाएंगे तो किसका मजाक उड़ाएंगे। हम इश्क के बंदे हैं, इसलिए लोगों को देख करके जो है वो बात न बदलो। मैं तो अजमेर शरीफ जाता था और टीसी पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, तो मेरे दोस्त लोग शर्म की वजह से कहते थे कि यार ये टीसी मुसलमान नहीं है, अजमेर कह दो। मैंने कहा किसी मुसलमान और गैर मुस्लिम की वजह से हम अपनी बोली क्यों बदले, अजमेर शरीफ कहो ताकि वो भी अजमेर शरीफ कहे। याद रखिए कि किसी को देखकर अपनी बोली नहीं बदलना, हम अपनी निस्बतों का ख्याल करें। मजाक उड़ाने का तो फिक्र छोड़ दो, इसलिए कि दीवानों ही का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन दीवाना कभी फिक्र नहीं करता कि मुझे लोग क्या कहेंगे। इश्क वालों का मजाक हमेशा उड़ाया गया, अभी भी उड़ाया जा रहा है, आगे भी उड़ाया जाता रहेगा, लेकिन आशिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनाफिकों ने सिद्दीक अकबर के इश्क का मजाक न उड़ाया, फारूक आजम के इश्क का मजाक न उड़ाया। बहरहाल तो हम मदीने मुनव्वरा को मदीने मुनव्वरा कहते, यसरब नहीं कहते। तो मदीने मुनव्वरा में हुजूर के प्यारे प्यारे अब्बू जान सैयदुना अब्दुल्ला का विसाल हो गया और वहीं पर आपको दफन किया। और उसके बाद बताऊं, आज से चंद साल पहले जब मस्जिद नबवी की तौसी होने लगी तो रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार मस्जिद के अंदर आ रहा था, तो सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया कि रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार निकाल करके जो है वो जन्नतुल बकी में जो है वो मुंतकिल कर दे। तो बड़े बड़े उलमा और मुफ्तियों को जो है उनकी मौजूदगी के अंदर रसूलुल्लाह के अब्बू जान की कब्र को खोला गया और कब्र को खोल करके उनके जिस्म को निकाला गया। मुफ्ती आजम मिस्र का बयान है कि वो इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त मौजूद था, तो मैंने देखा जब रसूलुल्लाह के अब्बू जान का मजार जो है वो रखा गया है स्टेचर पे ला करके, तो मैंने देखा इतने खूबसूरत थे, ज्यादा उम्र नहीं थी, अभी चेहरे पर दाढ़ी के बाल निकल रहे थे। मैंने सोचा कि मैंने रसूलुल्लाह के अब्बू जान को तो जो है वो उनकी हयात में नहीं देखा, जरा इनके जिस्म को हाथ लगाकर टच करके बरकत हासिल करूं। तो कहते जब मैंने टच किया तो जैसे जिंदों को टच करते हैं तो थोड़ी देर के लिए खून हट जाता है, फिर वापस से खून वापस आ जाता है। तो 1400 साल के बाद भी रसूलुल्लाह के अब्बू जान के जिस्म को टच किया गया तो कहा रेशम से ज्यादा नर्म लग रहा था जिस्म, सुभान अल्लाह। करो ताजा। मैं कहता हूं नबी के या रसूल नबी के माँ बाप को
نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کیا کافروں کا جسم بھی 1400 سال تک کے قبر میں محفوظ رہتا ہے؟ اور مولوی تیری جسم کو قبر کی ہڈیاں، تیری قبر کی ہڈیاں مٹی کھا جائے گی. کتنے لوگ ہیں جو مٹی میں مل گئے لیکن نادان یہ نہیں دیکھتا ارے تو تیرا باپ مولوی ہو کر کے تیری قبر میں ہڈیاں پگھل گئی اور پگھل جائے گی، لیکن میرے نبی کے ابو جان کے جسم کو دیکھ 1400 سال کے بعد بھی جسم صحیح سلامت ہے. کیا کافر ایسے ہوتے ہیں؟ کافروں کے جسم بھی صحیح سلامت ہوتے. ارے پاگلو، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، چوروں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، جواریوں کے یہاں ولی پیدا نہیں ہوتا، تو کافر کے گھر میں اللہ کا محبوب کیسے پیدا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ارے جب غوث پاک جیسے سید الاولیاء کو پیدا کرنا ہوا تو صالح کے گھر میں سید الاولیاء پیدا نہیں ہوا، بلکہ سید الاولیاء صالح نہیں ابو صالح کے گھر میں پیدا ہوا. جب سید الاولیاء کے لیے صالح نہیں چلتا بلکہ ابو صالح چاہیے، جب غوث پاک کے والد کے لیے اتنے متقی کا انتخاب کیا گیا تو سید الانبیاء کے والد کے لیے کیسے والد کا انتخاب کیا؟ نعرے تکبیر، رسالت، نعرے حیدری. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ باپ ہونے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ کسی کا بیٹا غوث ہے، کتب ابدال صحابی ہے، لیکن اے سرکار عبداللہ تم پر میری جان قربان ہے، میری نسل قربان ہے، تمہارا شہزادہ تو اللہ کا محبوب ہے. نعرے رسالت. حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں، حضرت عبداللہ اور آمنہ وہ ہیں. توجہ، بات بہت الگ سمت میں نکل گئی اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ابوا اور گنبد خضرا کی توجہ اس طرف ہو گئی. سبحان اللہ. عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا جانے، عبداللہ اور آمنہ کو لوگ کیا پہچانے؟ جس کو عرش سے سلام آتا ہے، توجہ، جس کو عرش سے سلام آتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ جس کی بہو ہے وہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ ہے. سبحان اللہ. جس سیدہ فاطمہ کے لیے قیامت کے دن اعلان ہوگا، محشر والو گردنیں جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزر رہی ہے، جس کے لیے محشر والوں کی گردنیں جھکائی جائے گی، وہ سیدہ فاطمہ جس کی پوتی ہے اس کو سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ کہا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. اپنے نبی کے ماں باپ کی اہمیت سمجھو. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب میری دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو میں اللہ سے کہتا ہوں واسطہ تجھے نبی کے ماں باپ کا. سبحان اللہ. نبی کے ماں باپ نبی کے ماں باپ ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نبی کے والدین پہ بہت باتیں کروں، لیکن میں بس اتنی بات پہ بات پوری کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور بہت دیر تک کے سردی کے موسم میں تقریر کرنا لوگوں کی اپنی حاجتیں ہوتی ہے. ایک بات سن لے، حضور علیہ السلام کی امی جان سے حضور کو پیار کتنا تھا. تو حضور کی امی جان نے کہا، کوئی بات پوری کر لوں نا. حضور کی امی جان نے کہا میرے بیٹے، ہائے ہائے ہائے، حضور کو کوئی بیٹا نہیں کہہ سکتا، پوچھو علماء سے ہیں، وہ سب کے آقا ہیں، لیکن جس کو بیٹا کہنے کا حق ہے وہ سیدہ آمنہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. وہ سرکار آمنہ آپ کے قدموں کی بلائیں لیتی ہے دنیا کہ آپ کیسی ماں ہے. جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے. ہائے کیا شان ہے سرکار آمنہ. اللہ اکبر. تو کہا میرے بیٹے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے بابا کے مزار پہ تمہیں لے چلوں اور تمہارے دادا سے اجازت لی. 3 لوگ نکلے مکے سے مدینہ شریف چل. اس وقت تو مدینہ شریف نام نہیں تھا، یثرب تھا. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ مدینہ شریف نام تو بعد میں پڑا، تو اس کو نام یثرب. تو بہرحال یہ بھی دیکھ لیں. توجہ، نبی کے پہنچنے سے پہلے ابا جا کر آرام کر رہے ہیں کہ تم یہی آؤ گے میرے لاڈلے، سبحان اللہ. تم یہی آؤ گے تو ہم اور تم قیامت تک ساتھ ساتھ آرام کریں. ہیں ہائے ہائے. اور جو جگہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی نبی کے ابا جان کے مزار کی، وہ رسول اللہ کے سرحانے، توجہ، حضور کے کہاں ہیں؟ ہاں، پورا بقی قدموں میں سو رہا ہے
اور ابا کو سرحانے رکھا. اب تو وہ منتقل ہو گیا مزار, لیکن بہرحال جو جگہ ہے وہ اس کی نشاندہی کی گئی ہے. بہرحال تو حضور کی امی جان نے کہا کہ ہم تمہیں زیارت کرائیں تمہارے بابا کی, تمہارے بابا کی مزار کی زیارت. اور حضرت ام ایمن یہ حضور کی امی کی کنیز تھی. اصل میں یہ کنیز تھی حضور کے ابو جان کی, لیکن جب حضور کے ابو جان کا وصال ہوا تو یہ کنیز ہو گئی حضرت ام ایمن حضور کی امی کی. اور جب امی کا وصال ہوا تو یہ کنیز مل گئی کس کو؟ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ام ایمن کا نصیب دیکھو, پہلے کنیز تھی حضور کے ابو جان کی, پھر کنیز بنی حضور کی امی جان کی, پھر کنیز بنی رسول اللہ کی, پھر کنیز بنی سیدہ فاطمہ کی. ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ ام ایمن بھی ام ایمن ہے, یہ ام ایمن بھی بڑی شان والی خاتون ام ایمن. ہائے ہائے. تو بہرحال یہ تینوں قافلہ نکلا اور پھر مکہ شریف سے مدینہ شریف گئے, اور حضور نے اپنے ابو جان کے مزار پر ابو جان کے مزار پہ گئے اپنی زیارت کرانے. یہی تو کہوں گا, حضور اپنے ابو جان کو اپنی زیارت کرانے کے لیے گئے. حضور کی امی جان نے جو ہے وہ اپنے شوہر کا مزار دیکھا, بہت روئی. جوانی کا عالم تھا, بہت چھوٹی عمر تھی, کوئی بڑی عمر نہیں تھی حضور کی امی جان کی, اور جوانی میں بیوہ ہو گئی. حضور اپنی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے تھے تب حضور کے ابو جان کا وصال ہو گیا. تو بہت بڑی شاعرہ بھی تھی, شعر کہنا جانتی, شعر کہنے کی صلاحیت تھی. تو اپنے شوہر کی شان میں شعر کہنے لگی اور صدمہ تازہ ہو گیا. تقریباً 6 سال کے بعد, وصال کے 6.5 سال کے بعد پہنچی تھی, صدمہ تازہ ہو گیا. اور جب مدینہ منورہ سے واپس پلٹنے لگی مکہ شریف کی طرف, تو ابوا کے مقام پر برداشت نہیں ہوا صدمہ, بیماری بڑھ گئی. جب بیماری بڑھ گئی تو سرکار آمنہ نے حضرت ام ایمن سے کہا, ام ایمن اب مجھ سے چلا نہیں جاتا, کوئی چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کر لیتے ہیں. اور جب چھوٹے سے ٹیلے پہ قیام کے لیے رکے تو وہ ابوا کا مقام تھا, وہاں چادر بچھا دی گئی, پتھر کا سرہانہ امی کے سرہانے رکھ دیا گیا, اور حضور اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئے. حضور کی امی جان حضور کو دیکھتی اور روتی, دیکھتی اور روتی, اس لیے کہ وہ جان رہی تھی کہ یہ میرا آخری دیدار ہے. اور حضور کی امی جان کا وصال کس شان سے ہوا, حضور سرہانے بیٹھے اور امی حضور کو دیکھ رہی ہے, اور حضور کو صرف دیکھ نہیں رہی ہے بلکہ حضور کی نعت پڑھ رہی ہے. حضور کی پیدائش کے بعد جس نے سب سے پہلے حضور کی نعت لکھی ہے اسے سیدہ آمنہ کہتے ہیں. اور کیا نعت لکھی, مجھے سب اشعار تو یاد نہیں, جس کو پڑھنا ہے امام قسطلانی کی کتاب میں پڑھ لے, لیکن میں اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں, مجھے وہ اشعار یاد نہیں. کہ وہ کہتی ہیں کہ نصیحت کر, میرے بیٹے کبھی بتوں کے قریب مت جانا. کیا کہتی, کبھی بتوں, یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, کبھی بتوں کے قریب مت جانا, میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتی, میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور پھر اس کے بعد شعر کہتی ہے, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی. شعر ہے کس کے, سرکار آمنہ کی. آپ کو بہت سے نعت کو یاد ہے, سب سے پہلے جس نے نعت لکھی ہے وہ نبی کی امی ہے. یہ نعت یاد نہیں, یہ نعت یاد نہیں, ان کو کافر کہتے ہو. شرم نہیں آتی لوگوں کو, ان بزرگوں کو کافر کہتے ہو جو نبی کی نعتیں لکھ رہے لوگوں کے لکھنے سے پہلے. نبی کی پیاری امی جان تو کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر عروج کو زوال آئے گا, ہر بلندی پستی میں چلی جائے گی, ہر مشہور کو بھلا دیا جائے گا. پھر کہتی مگر 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 آمنہ کو کبھی نہیں بھلایا جائے گا, آمنہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا, آمنہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا, کیونکہ میں نے ایسے فرزند کو جنم دیا ہے, اس کی وجہ سے قیامت تک میرا نام زندہ رہے گا. میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا نہیں ہے, میرے بیٹے کے ذریعے سے میرا نام, اے سرکار آمنہ, اے ابوا کی ملکہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان, سرکار بالکل آپ کا نام زندہ ہے. یہ گاؤں, اس کا نام کیا ہے, دکن بھوبانی. یہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا,
लेकिन आज इस भोबानी के अंदर नबी की अम्मा जान का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। मलका अव्वा का जिक्र हो रहा है। आपने सच कहा था, ए अव्वा की मलका, ए मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान, तुम्हारी नालैन पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी आल औलाद कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, हमारा जिस्म कुर्बान, हमारी रूहें कुर्बान। सरकार आमिना, बिल्कुल आपका जिक्र जिंदा रहेगा। और अमीनुल कादरी जैसे लोग अगर मर जाएं तो भी इसके बाद हजारों लोग पैदा होंगे जो आपकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते रहेंगे। आप कहती है मेरा नाम क़यामत तक हमेशा जिंदा रहेगा कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसके चेहरे की रोशनी अल्लाह अकबर दिलों को लुभाती है, जिसके चेहरे का नूर अल्लाह अकबर दिलों को जिंदगी बख्शता है। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान ये नात पढ़ रही है और रोती जा रही है। हुजूर अम्मी को रोते देखकर खुद भी रो रहे हैं। ये आखिरी मुलाकात है नबी की अपनी अम्मी जान से। हाय हाय हाय, हुजूर रो रहे हैं, अम्मी जान रो रही है। ऐसे में रोते रोते एक आखिरी हिचकी आती है और नबी की अम्मी जान हिचकी लेकर के उनकी रूह निकल जाती है, सर ढलक जाता है। सर ढलक गया, हुजूर रोते हैं, अम्मी को देखते, अम्मी चुप हो गई, अम्मी जान चुप हो गई। तो सरकार अपनी अम्मी को कहते, अम्मी अम्मी उठो, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी ना कहो, यानी जो नात पढ़ रही थी और पढ़ो। तो मेमन ने सीने से चिमटा लिया और चिमटा के कहा, शहजादे तुम्हारी अम्मी अब दुनिया से चली गई है। जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मैंने सोचा उम्मे ऐमन तुमने मना क्यों किया? तो फौरन मेरे दिल ने कहा अभी अल्लाह को पर्दा मंजूर था, अगर दूसरी मर्तबा नबी माँ को कह देते माँ बोलो तो नबी की माँ बोल पड़ती। सुभान अल्लाह। अरे जब उनके 11वें नंबर के बेटे की ठोकर से मुर्दा जिंदा होता है कुम बिस्मिल्लाह कह, जब मेरा गौस मुर्दे को जिंदा कर सकता है अल्लाह की अता से, तो मेरे नबी की शान क्या है ना। लेकिन बहरहाल क्या हुआ, तो उम्मे ऐमन ने रोक दिया, मना कर दिया कि शहजादे जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, उनको ज़मीन के अंदर दफन करना होता है, उनको आराम के लिए लिटा दिया जाना होता है। क्या शान है सरकार आमिना की, नबी ने अपने हाथों से 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कब्र खोदी, अपनी माँ की कब्र। हाय, ये माँ के साथ प्यार है, नबी मोहब्बत है। किसी की कब्र सहाबा ने खोदी, किसी की कब्र औलिया ने खोदी, किसी की कब्र अम्बिया ने भी खोदी, लेकिन सैयदुल अम्बिया 6 साल की उम्र में जिसकी कब्र अपने हाथ से खोदते हैं वो एक खुशनसीब हस्ती है जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा नबी की प्यारी प्यारी अम्मी जान सैयदा आमिना कहा जाता है। और फिर जब कब्र खुद गई तो उम्मे ऐमन की मदद से रसूलुल्लाह ने अपनी माँ को अपने हाथों से उनकी कब्र में उतारा, और कब्र में उतारने के बाद जब मट्टी बराबर कर दी गई तो मट्टी बराबर करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान की कब्र जब अव्वा में बन गई तो सरकार का हाथ पकड़ा और उम्मे ऐमन ने कहा शहजादे चलो, क्योंकि उम्मे ऐमन को मेरे आका की अम्मी जान ने कहा था उम्मे ऐमन मेरी अमानत को संभाल कर ले जाना, यमन अव्वा से संभाल के मक्के ले जाना और इनके दादा के सुपुर्द कर देना। उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कहा चलो। अब जरा तसव्वुर में लाएं अव्वा की ज़मीन को, कहा चलो। तो जैसे कहा चलो तो मेरे आका ने शान मासूमियत से पूछा उम्मे ऐमन मेरी अम्मी, मेरी अम्मी। उम्मे ऐमन ने रोते हुए कहा शहजादे तुम्हारी अम्मी अब हमारे साथ कभी नहीं आएगी, तुम्हारी अम्मी अब हमेशा यहीं रहेगी, तुम्हारी अम्मी का मकाम यही, तुम्हारी अम्मी यहीं रहेगी। तो उम्मे ऐमन का बयान है, बुजुर्गों ने फरमाया हुजूर ने उम्मे ऐमन का हाथ छुड़ाया और टीले की तरफ तेजी से गए। जब उम्मे ऐमन गई तो क्या देखा, हुजूर माँ की कब्र पे लिपट कर रो रहे हैं। माँ से मोहब्बत देखो, माँ की कब्र पे लिपट के रो रहे हैं और मोटे मोटे आंसू कब्र पर निछावर हो रहे हैं। और सरकार कहते अम्मी तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है और तुम भी मुझे छोड़कर चली गई, अम्मी तुम भी मुझे छोड़ के दुनिया से चली गई। इतना कहना था, उम्मे ऐमन रो पड़ी और रोने के बाद उम्मे ऐमन का बयान है कि उम्मे ऐमन ने हुजूर को उठाया, उठा करके जब ले करके गई तो उम्मे ऐमन कहती है मैं जब हुजूर को लेके जा रही थी हुजूर माँ से मोहब्बत इतनी थी कि पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे, रोते जा रहे थे और पलट पलट कर माँ की कब्र को देख रहे थे। हत्ता कि जब मैंने उनको अपनी सवारी पर अपनी ऊँटनी पे बिठाया तो मैं देखती थी जैसे वो अव्वा से दूर जाते
वैसे पलट पलट कर देखते, ऐसा लगता था अभी माँ लौट कर आएगी, अभी माँ लौट कर आएगी। मगर ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत की सुन्नत है। जो दुनिया से चले जाते हैं कभी लौट के नहीं आते। फिर नहीं पता कि उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह के आंसुओं को कैसे खुश्क किया, कैसे पहुँचा, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने आंसुओं को किस तरीके से उस पर सब्र किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे नबी माँ को याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे, याद करते रहे। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, मगरिब की नमाज हो गई, इशा की नमाज का इंतज़ार है। ऐसे में अल्लाह के रसूल इशा की नमाज के इंतज़ार में है, सहाबा भी इंतज़ार में है। और सहाबा की आदत थी कि जब हुजूर मौजूद होते तो हुजूर के रुख अनवर को तका करते, देखा करते। वो जानते थे हुजूर को देखने से बड़ी कोई इबादत नहीं। सहाबा हुजूर को देख रहे थे, हुजूर की आंखों में चुपके चुपके आंसू आ रहे थे और दाढ़ी शरीफ पर निछावर हो रहे थे, मोटे मोटे आंसू हुजूर की आंखों में थे। सहाबा ने देखा हुजूर रो रहे। वो सहाबा किराम थे, आका की तकलीफ को अपनी तकलीफ से बढ़ के समझते थे, हुजूर की खुशी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खुशी से बढ़ के समझते थे। सब कुछ कुर्बान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। जब आका को रोते हुए देखा, सहाबा तड़प गए, हुजूर के करीब आए, हुजूर को चारों तरफ से घेर लिया। आका, हमारे माँ बाप कुर्बान आप पे, आप क्यों रो रहे हैं आका? रोने की वजह क्या है? नौजवानों, बस तसव्वुर करो, आज माँ बाप है, उनकी कदर कर लो। जब ये नेमत छीन ली जाएगी, माँ बाप जब कब्रों में हमेशा के लिए नींद सो जाएंगे, तुम उन्हें याद करो। हुजूर ने याद किया, तुम ना याद करो, उन्हें ढूंढोगे, तमन्ना करोगे कि ख्वाब में उनकी ज़ियारत हो जाए। लेकिन उस वक्त तो ख्वाब में भी वो नहीं दिखेंगे। आज सता लो जितना सता रहे हो, कल ख्वाब को भी तरस जाओगे। आज उनको राजी कर लो, आज उनको राजी कर लो, वक्त है, नेमत है। उनकी मौत की तमन्ना मत करो, उनकी लंबी उम्र की दुआ करो। उनके हाथों को चूमो, उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाओ, उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उनको अपने करीब रखो, उनके करीब रहो, उन पे सब कुछ कुर्बान करो। एक दिन तुम याद करोगे वो नबी जिसका सर दर्द करता है तो अल्लाह लामका पे बुला के अपना दीदार कराता है। वो रसूल रो रहे, चुपके चुपके रो रहे, खामोश आंसुओं से रो रहे। साहबा पूछते, आका क्यों रो रहे, रोने की वजह क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई, आज मुझे मेरी अम्मी याद आ गई। हाय मेरी अम्मी। फिर मेरे आका ने जब कहा ना मुझे मेरी अम्मी याद आ गई, क्या वो दर्दनाक लम्हा रहा होगा। रसूलुल्लाह की रोती हुई आंखें और हुजूर के लम्हाए अक़दस से जब ये जुमले निकले होंगे, मेरी अम्मी मुझे याद आ गई, हाय मेरी अम्मी। साहबा रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए। क्या वो खुशनसीब माँ है जिसको अल्लाह का रसूल याद कर कर के रो रहा है? साहबा किराम हुजूर के साथ रो पड़े और मेरे आका कहते, काश, देखो हुजूर कह रहे, काश आज मेरी अम्मी होती कितना अच्छा होता, आज मेरी माँ होती कितना अच्छा होता। हुजूर को माँ की याद आ रही, हुजूर को माँ की याद। जिसको अल्लाह ने जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया, उस नबी को माँ की याद आई, हमें भी आएगी। दुआ करो अल्लाह अपने माँ बाप को लंबी उम्र दे, उनकी खिदमत करो, उन्हें खुश करो। माँ बाप खुश है, अल्लाह खुश। माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज। जो औलाद माँ बाप का दिल दुखा के उनको नाराज करे, आका ने फरमाया अल्लाह तो उनकी नमाजें भी कबूल नहीं करता, इबादतें भी कबूल नहीं करता। आओ तो हुजूर फरमाते, आज मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई। सब साहबा रो पड़े। फिर आका कहते, काश आज मेरी अम्मी हयात होती कितना अच्छा होता। ये कहते हुजूर रो पड़े, सब रो पड़े, देर तक रोते रहे। जब रोते रोते फाका हुआ तो सहाबा किराम से मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, काश अगर आज मेरी माँ हयात होती तो कितना अच्छा होता, और मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता। अब हुजूर की तमन्ना देखे, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें
नमाज पढ़ा रहा होता। ये नबी की नमाज है, नमाज लाने वाले की नमाज, जाने नमाज की नमाज है, जाने ईमान की नमाज है। आका कहते काश मेरी अम्मी हयात होती, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी माँ को मेरी हाजत होती और मेरी माँ मुझे पुकारती, मेरे बेटे मोहम्मद वही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ को मेरी हाजत होती, मेरी माँ को मेरी हाजत होती और मेरी माँ मुझे कहती, मेरे लाल, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मैं नमाज की हालत में माँ की आवाज को सुनता। जब मेरी माँ मुझे पुकारती तो मैं माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता। मैं मेरी माँ की आवाज पर नमाज छोड़ देता और नमाज छोड़कर लब्बैक या उम्मी कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मेरे आका ने अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार किया। आपसे मैं पूछता हूँ, आका कह रहे कि मेरी माँ मुझे अगर नमाज में बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर चला जाता। और आज हमारा क्या हाल है? माँ कह रही है दवा को पैसे दे तो डांट रहे हो। माँ कह रही है तू अपनी पसंद की शादी मत कर। बाप कह रहे तू अपनी पसंद की शादी मत कर, वो लोग अपने मेयार के नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। तो कहते हो मैं तुझे छोड़ दूंगा लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई कहाँ? माँ बाप को छोड़कर नमाजें कबूल नहीं है। अगर माँ बाप को छोड़ के अपनी पसंद की शादियां करोगे, उनका दिल दुखा के, तुम्हें खुशियां कैसे मिली? उनको डांटते हो, उन्हें तकलीफ पहुंचा, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको शऊर अता फरमाए। आज घर जाना, घर जाने के बाद सबसे पहला जो काम करना है अपने माँ बाप को राजी करो। अगर अल्लाह को राजी देखना है अपने माँ बाप को राजी। तुम्हारे माँ बाप इधर उधर पड़े हुए, अपनी बीवियों के हवाले मत छोड़ दो अपने माँ बाप को कि तू खिदमत कर, नहीं, तुम खुद भी खिदमत करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ। मैं देख रहा हूं बहुत सारे माँ बाप मस्जिदों के दरवाजों पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप उनकी खाट आपने जबरदस्ती बाहर कर रखी। उन्हें बादशाहों की तरह, गुलामों की तरह मत रखो। माँ बाप को बादशाहों की तरह रखो। उनके सामने ऊंची आवाज न करो, पस्त आवाज करो। वो जो कहें उनकी बात मानो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हें दुनिया में जन्नत हासिल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया फिर कुछ भी कर लो, कुछ बनने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैंने वक्त ज़्यादा ले लिया।